So you have now come to understand the Coulomb's law. तो Coulomb's law वो चार्जेस के बीच में फोर्स बताता है. अब वो फोर्स अलग अलग होगा चार्ज को हम वैक्यूम में सेपरेट करें या किसी मीडियम में सेपरेट करें. तो उसके लिए हमने एक्सप्रेशंस लिखे थे. तो कॉमन एक्सप्रेशन इज फोर्स इज 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 by r square. This is expression for Coulomb's law. Basic for vacuum ER is 1, therefore F equals to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. Here the value of 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो जो हमको परेशानी हो रही थी कि अगर हम अब ये दिस इज द फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में फिर सॉल्यूशन होगा तो हम कैसे करेंगे. तो 1 by 4 pi epsilon naught जो ये फैक्टर था इसकी वैल्यू हमको पता चल गई. हम इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे. जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते थे, तो यहाँ पर भी 1 by 4 pi epsilon naught की वैल्यू is 9 into 10 raised power 9. तो 1 by 4 pi epsilon naught value of this is this much and value of epsilon naught is 8.85 into 10 raised power minus 12 coulomb square per Newton per meter. Now we have to remember all these values. So values for 1 by 4 pi epsilon naught we will put directly in question when we have to solve the question numericals also. Therefore these constant value we need to remember. Value of 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised power 9 and value of epsilon naught is 8.85 into 10 raised power minus 12. Unit and dimensions play a very important role in physics. So if question is what is the dimension formula of epsilon naught? Dimensional formula of epsilon naught क्या होगा? So we can find it from, we know according to the Coulomb's law force between two charges is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. Now we can express epsilon naught from here. It will be q1 q2 by 4 pi r square fr square. From this expression we can find out the dimensions of epsilon naught. So charge is current into time. Therefore dimensions of charge is ampere into time. So here ampere into time divided by 4 pi constant ml t minus 2 into l square. Then dimension formula will be m minus 1 l2 minus 2 t minus 2 t minus 4 plus 4 हो गया and L3 2 plus 1 3 M minus 1 L minus 3 T minus 2 plus 2 4 and e power 2. This is important question. एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं. There is 10 objective question for the final exam. Therefore this question can be in your exam. Dimensions of epsilon naught. So we can derive the dimensions and units are from formula. So this is again important point. Now questions based upon Coulomb's law. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, two similar charges are separated by distance r. Similar charges means force between the two charges will be 1 by 4 pi epsilon naught q square upon r square. These two charges are separated in
free space. And this, if the magnitude of charge is doubled and distance between them is reduced to half, then but how is the force affected? Then answer will be first situation, two charges are separated by distance r, charges are similar, therefore force will be q square by 4 pi epsilon naught r square. If the magnitude of charge is doubled and distance between them is reduced to half, then r by 2 square. What will be the answer? Here f dash is 16 q square by 4 pi epsilon naught r square. So divide equation 2 by 1, f dash by f will be 16 or f dash is 16 times of f, therefore force will increase 16 times of its RS value. This is simplest question and simplest form of the question which can be asked directly for 1 and 2 marks in the examination. Also it's a very good question. सबसे पहले हम फॉर्मूले के बारे में यही सोचते हैं कि सबसे पहले एक फॉर्मूला हमारे पास आता है तो उसमें जो पैरामीटर्स हैं उनको अगर चेंज कर दिया जाए तो वो कैसे जो उसका जिस चीज का वो एक्सप्रेशन है उस क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। हमको क्वेश्चन बहुत सिंपल हो सकता है, फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, सपोज देयर इज टू अल्फा पार्टिकल्स। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन को सेपरेट किया गया है, उनके बीच का डिस्टेंस 3.2 into 10⁻⁻19 मीटर है। Then what will be the force between them? So here we must know the charge on electron and charge on alpha particle. And alpha particle पे चार्ज इक्वेशन में गिवन नहीं होता, हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज डबल द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, 3.2 into 10⁻⁻19 coulomb. Charge on electron is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Coulomb is the unit of charge और वो भी हमको डिफाइन करना आना चाहिए वो क्या होता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम 10 में भी हम पढ़ चुके होते हैं और सीजीएस यूनिट के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये क्योंकि फॉर्मूला था और वो सब डेफिनेशन के फॉर्मूले से आती है, इसलिए दीज आर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन और ये हमको आने चाहिए। तो सब लोगों को थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है, इसको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल सिंपल एक फॉर्म हमारे पास बन गई है। नाउ वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 3.2 into 10⁻⁻19, 1.6 into 10⁻⁻19 k times q1 q2 by r square. R square means 1.6 ले लेते हैं इसको, 1.6 into 10⁻⁻19 का स्क्वायर। नाउ फोर्स क्या हो जाएगा, k is 1/4 pi epsilon naught, वैल्यू क्या थी 9 into 10⁻⁹ ले लेना है हमने इसको, into 3.2 into 10⁻⁻19, 1.6 into 10⁻⁻19 upon 1.6 into 10⁻⁻19 q। now ये 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएगा, 1.6 का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा एंड देन यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड देन वी आर लेफ्ट विद 9 2s are 18 into 10⁻⁻19। दिस इज द सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कूलम्स लॉ पे बेस्ड। अगर डायरेक्ट न्यूमेरिकल की फॉर्म में है, आपको दो चार्जेस गिवन होंगे। यहाँ पे कूलम्स का एक्सप्रेशन चार्जेस कूलम, माइक्रो कूलम हमने आपको सारा प्लस में बताया है। माइक्रो में हम क्या यूज करते हैं 10⁻⁻6, मेगा में हम 10⁻⁹ यूज करते हैं, माइक्रो में 10⁻⁻12 यूज करते हैं। मिली सेंटी सब लिखा रखा है, वो कन्वर्जन हो सकता है और वो हमको ध्यान रखना है। नॉर्मली हमको कूलम चार्ज माइक्रो कूलम में दिया होता है तो हमको उसको रिप्लेस करना है 10⁻⁶ कूलम से।
तो जब भी क्वेश्चन होगा तो हमने पहचाना है स्टेटमेंट के अंदर कि हमको कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। तो कूलम्स लॉ के केस में आपको दो चार्जेस होंगे, उनके बीच का सेपरेशन होगा। के की वैल्यू फिक्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज 9 × 10⁹ आपको सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, हम एक स्पेशल लेक्चर में, कल वाले में, नेक्स्ट लेक्चर में हम यही करेंगे। जो हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द चार्ज में कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, कूलम्स लॉ पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड इट्स वन मोर टॉपिक इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको बताता है, हमने +1 में वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में पढ़ा कि जब बहुत सारे वेव्स इकट्ठा मिलते हैं तो जो वेव उनसे बनता है वो होता है वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। हम उसको वेव्स की फॉर्म में लिखते थे वेव साइन एंड कोसाइन फंक्शन से। तो लास्ट में ये टॉपिक हमने किया था फॉर्मेशन ऑफ ग्रिड्स में, तो वेव्स को लिखा था, दो वेव सुपर इम्पोज हुए, तो उनका जो एडिशन का फॉर्म बना उसको सुपर पोजिशन बोला गया। तो यहाँ पर भी एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो होगा। तो ये सारा का सारा कूलम्स लॉ से रिलेटेड टॉपिक है, जहां पे हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि इन कूलम्स लॉ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स अगर हम देखें तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स? फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज k टाइम्स q1 q2 by r²। पहला कैरेक्टर तो हमको दिख रहा है फोर्स इज ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। Second important point is force between the two charges is independent of the presence of the other charge. Force between the two charges independent of the presence of the other charge. अगर दो चार्ज की जगह तीन चार्जेस आ गए, दो चार्ज के बीच में तो हमने बोल दिया कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस q1 q2 by r² रहेगा। अब तीन चार्जेस हो गए ऐसे, अब ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, सबका फोर्स लगता रहेगा। तो फोर्स बिटवीन द टू विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड वन। इस पे फोर्स निकालने के लिए हम इसका इफेक्ट को इग्नोर कर देंगे, इसका इस पे निकालने के लिए इग्नोर कर देंगे, लेकिन इस पे जब इन दोनों का निकाल रहे होंगे तो टोटल फोर्स इस चार्ज पे होगा, वो होगा फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज प्लस फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज। फर्स्ट पॉइंट। अब अगर दो की जगह तीन चार्जेस, चार चार्जेस हो गए, सपोज इस तरह की सिचुएशन आ गई, अब यहाँ पर इस चार्ज पे ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, इस चार्ज पे जो टोटल फोर्स होगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम इज इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अगर हमने वेक्टर के कंसेप्ट को इग्नोर कर दिया तो 100% हमारे रिजल्ट्स गलत होंगे। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपके पास आएगी। सपोज ये चार्ज है हमारा 1, ये है 2, ये है 3 और ये हमारा है Q0। इस चार्ज पे ये फोर्स लगा रहा है, Q1 भी लगा रहा है, Q2 भी लगा रहा है और Q3 भी लगा रहा है। अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इनके बीच का डिस्टेंस इतना हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस इतना हो गया R1 R2। नाउ दिस विल बी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हमको निकालना आता है, पाइथागोरस थ्योरम रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने सारे चार्जेस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब इस चार्ज पे जो फोर्स होगा, सपोज इसका फोर्स F1 है, इसका फोर्स F2 है और इसका फोर्स F3 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। नाउ नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी F1 plus F2 plus F3 plus so on। अगर वहां पे बहुत सारे चार्जेस होंगे तो फोर्स ऑन वन चार्ज is vector sum of individual forces exerted by all other charges on this charge
इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अगर एक चार्ज हमारे पास रखा हुआ है, उसके बाहर बहुत सारे चार्जेस हैं, तो वो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएंगे, वो नेट फोर्स विल बी द सम टोटल ऑफ वेक्टर सम इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेक्टर सम है यहाँ पर, अगर हम इस वेक्टर सम को इग्नोर करेंगे तो वहां पे आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए, आप वेक्टर सम का अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर। अब एज्यूम करो कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, और ये भी प्लस क्यू, ऑल चार्जेस आर प्लस पॉजिटिव। देन तो क्या इनके बीच में रिपल्शन होगा, इसके बीच में भी रिपल्शन होगा, इसके बीच में भी रिपल्शन होगा। तो इसलिए मैंने जब दो वेक्टर्स के बारे में बात की थी तो एरो इंडिकेट करे थे, तो हमको ये समझ में आना चाहिए जब हम सिमिलर चार्जेस को कंसीडर करेंगे तो साइड उसका रिपल्शन करेंगे बाहर को, और जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो साइड देंगे अंदर को। तो F1 डायरेक्शन ऑफ F1, डायरेक्शन ऑफ F2 एंड डायरेक्शन ऑफ F3। तो दिस इज फोर्स F1, this is force F2 and this is force F3. Now what will be the sum total of these forces? So this is now situation, यहाँ पे हमको निकालना है कि टोटल फोर्स कितना हो जाएगा। Now it will follow the triangle of vector addition. This force, total force will be F1 plus F2 plus F3। Now F1 क्या होगा, वो यहाँ से आएगा Q1 Q2 Q1 Q2 नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, Q2 नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, Q3 नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो here तो what is the sum total of वेक्टर सम का मीनिंग क्या है यहाँ पर F1 plus F2 क्या होगा, F1 plus F2 will be F1 square plus F2 square plus F1 F2 cos theta। Cos theta between F1 and F2 is 90, therefore F1 plus F2 equals to square root of F1 plus F2 square, and therefore resultant force will be F1 square plus F2 square root plus F3। This will be the result, this is the effect। हम ये यहाँ पे लिखेंगे कि इसका फोर्स निकाल दिया Q1 Q नॉट बाई आर स्क्वायर, Q1 Q नॉट बाई आर स्क्वायर, और उसको सीधा डायरेक्ट अलजेब्रिक सम ले लेंगे, नहीं, it is vector sum, therefore we have to follow the vector laws। This is one of the important point, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ये मिस्टेक हो गई, बहुत सारे आंसर हमारे गलत हो जाएंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट। तो यहाँ पर बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज कि फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, एक चार्ज के बाहर अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो फोर्स ऑन वन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस exerted by all the charges on this given charge is known as सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। अगर हम ऐसे बेसिकली इसको देखें तो एप्लीकेशन है इसका ये डायरेक्ट। तो नेक्स्ट चैप्टर में वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन से वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, जनरली हम ऐसे इसको ले लेते हैं, दिस इज द ओरिजिन एंड there is a coordinate system x, y and z. Suppose one charge is here, one is here, this is charge q1 and q2, q3, q1, e q naught, r1 position vector, r2 position vector, r3 position vector, r naught position vector and rn. There is so many charges. We suppose हमने इस r naught वाले चार्ज पे which is q naught, q1, q2, q3 and q1. q naught पे अगर हम फोर्स देखें, this is the charge which is under observation. इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब है कि इन दो के बीच का फोर्स इन सब से इंडिपेंडेंट होगा, इस पे फोर्स इन सब से इंडिपेंडेंट होगा, दो के बीच में जितना लग रहा है वो कंसीडर होगा,
जब हम दो को कंसिडर करेंगे तो तीसरे का रोल नहीं होगा, वो वेक्टर सम में आएगा। तो यहाँ पर जो इस पे फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स ऑन एफ नॉट इज F01 प्लस F02 प्लस F03 अप टू F0n। वेक्टर सम, एक चार्ज पे जो फोर्स है हम पहले इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, उसका वेक्टर सम लेंगे। वेक्टर सम में उसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, जो डायरेक्ट किधर को जा रहा है। अगर दो अपोजिट में गए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, दो सेम में गए तो डिफरेंस हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। दिस इज द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और नेट फोर्स एफ नेट हम कह सकते हैं समेशन F0i स्ट्रेंथ वैल्यूज फ्रॉम 1 to n। बहुत सिंपल है कि एक चार्ज कहीं पे रखा हुआ है, उसके बाहर बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उस पर जो नेट फोर्स होगा वो जो सारे इंडिविजुअली फोर्स लगा रहे हैं उसका वेक्टर सम होगा। बट उस पर हमको डायरेक्शन देखनी है। यहाँ वाली सिचुएशन देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर ऐसा एज्यूम करो कि ये 4 चार्जेस हैं, ये हमने एज्यूम किया Q0, ये था Q1, ये Q2 और ये Q3 था। अब एज्यूम करो कि ये सारे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब सिचुएशन चेंज हुई, इन दोनों को, इन सब को हमने पॉजिटिव कर दिया, ये सपोज नेगेटिव है। यहाँ पे सारे के सारे हमने पॉजिटिव कंसीडर किए, तो ये पॉजिटिव से इसका फोर्स भी बाहर को था, इसने लगाया फोर्स बाहर को था, इसने लगाया बाहर को था। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन हमको देखनी पड़ेगी, है तो वेक्टर सम, लेकिन इन दो का रिजल्टेंट निकालेंगे पहले। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, F1² प्लस F2² प्लस F1 F2 cos थीटा। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर को आ गया, फिर इसके साथ तीसरा था इधर चला गया। अब यहाँ पे अज्यूम कर लो, यहाँ पे इन दोनों का रिपल्शन इधर को हो गया, इन दोनों का रिपल्शन ये भी इधर को चला गया, ये अट्रैक्शन है इधर को आ गया। अब नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस ऑल, इसको अगर हम, ये F3 था, we can resolve that F3 into components। ये हमारा F1 है, ये F2 है और ये F3 है। Now we can resolve F3। F3 का इधर को कंपोनेंट आ गया F sin थीटा, इधर को कंपोनेंट आ गया F cos थीटा। नाउ दीज टू अपोजिट डायरेक्शन में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इनका रिजल्टेंट या तो इधर को आएगा या इधर को आएगा, और ये इधर को है, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट इधर को आएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर एडिशन। हम ये नहीं कह सकते कि हमने दो फोर्स के बीच, दो चार्ज के बीच में फोर्स निकाला और उसको हमने लिख दिया कि वो ऐड कर दिया, नहीं। सपोज 3 charges are placed like this, 1, 2 and 3. Suppose this charge is negative, positive, this is positive and this is negative. Now try to understand this situation. हमने या तो इस पे निकालना या इस पे या इस पे, हम किसी भी एक पे निकाल सकते हैं। दो के बीच का जो फोर्स होगा, इन दो के बीच का फोर्स क्या होगा, Q1, Q2, Q3। इन दो के बीच का फोर्स होगा Q1 Q2 by 4π/r²। इन दो के बीच का होगा Q1 Q2। तो अब हमने यहाँ पर वी हैव टू सी द डायरेक्शन। यहाँ पे ये जो फोर्स लगा, ये नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा फोर्स 1 का डायरेक्शन, ये भी अट्रैक्ट करेगा फोर्स 2 का डायरेक्शन। ये दो फोर्स ऐसे आगे। अब वो बुलेरो वाला केस हमने +1 में किया था, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर है, इनका पैरेललोग्राम कंसीडर करो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर है, और वो होगा क्या, F इक्वल्स टू F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos²। दिस इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जब कहीं पे वेक्टर एडिशन आता है तो इट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हमने +1 में बहुत डिटेल में किए हैं। इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर लो, सेम डायरेक्शन में ऐड कर लो, थीटा एंगल पे आ गए ऐसे, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर लो। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सुपर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट ज्यादा जो लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा एडवांस का काम करने का, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उनको ये चीज को बहुत ध्यान से देखना होगा कि अगर इफ देयर इज नंबर ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स इज इवैल्यूएटेड, तभी हमने एक टॉपिक बनाया, पहले हमने पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर लॉ तो वही कूलम्स लॉ यूज होगा, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में जो हम फोर्स निकालेंगे वो कूलम लॉ से ही निकलेगा, बट उसके बाद वो आगे अपने वेक्टर एडिशंस को फॉलो करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज नोन एज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि if there is a distribution of large number of charges, point charges, because this is the drawback of Coulomb's law, it is applicable only for the point charges. Therefore, if there is large number of point charges distributed and we have to find out the force on a single charge due to the number of charges, then net force will be vector sum of individual forces exerted on that charge by all other charges is the statement. So according to the statement, if the superposition principle is, if there is large number of charges Q1, Q2, Q3, तो this is the statement. तो आपको इसमें लिखना है superposition principle. According to the superposition principle, force on a given charge is vector sum of force exerted by all the charges, all other charges individually on this charge. This statement is referred as the superposition principle. To be assume the situation in coordinate system or simple situation, we can assume like this: 3, 4, 5 charges. So if there is n number of charges like this, then having some position vector, so vector form में हम इसका expression लिख सकते हैं. So net force of the given charge will be F1, F2, F3 का मतलब ये है. F01 का मतलब है जो F1 0 पे लगा रहा है, F20 का मतलब है जो 2 0 पे लगा रहा है, 3 0 पे लगा रहा है. अगर हम इस पे निकालेंगे तो Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 0 Q1 Q4 Q1 Q5 एंड सो ऑन, जिस एक पे निकाल रहे होंगे उनका सबका वेक्टर सम विल बी द टोटल फोर्स. और उसको निकालने का मेथड प्रैक्टिकली मींस एप्लीकेशन के फॉर्म में. अगर ट्रायंगल पे हमने ऐसी सिचुएशन है, अगर आप देखो सपोज हम यहाँ पे ये सेम सिचुएशन ऐसे हमको थी, अब ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव थी, इस पे क्या फोर्स होगा? ये इसको रिपेल कर रहा है, ये बाहर को लगेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इधर को लगेगा. एक फोर्स F2 इधर को आया, एक फोर्स F1 इधर को आया, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर को आएगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे, इसके पैरेलल करो यहाँ पर, तो ये सिचुएशन आ जाएगी. तो दिस विल फॉलो द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये सिचुएशन. सिमिलरली यहाँ पे ये इस पे फोर्स लगाएगा बाहर को, ये फोर्स लगाएगा अंदर को, तो यहाँ पे नेट फोर्स का रिजल्टेंट चला जाएगा. तो ये सिचुएशन जब आप भी पढ़ेंगे तो उसमें भी मेंशन करा हुआ है कि दिस इज, इस तरह की डायग्राम्स बनी हुई हैं. उसका कोई मेथड है तो आप किसी का भी बना सकते हैं. बेसिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि हम जब दो चार्जेस अपोजिट होंगे तो उन पे अट्रैक्शन होगा, अपोजिट में रिपल्शन, अपोजिट में अट्रैक्शन होगा और सिमिलर में रिपल्शन होगा. तो सिमिलर में डायरेक्शन बाहर को देनी है रिपल्शन, और अपोजिट में अंदर को देनी है वन चार्ज टुवर्ड्स दी अदर. तो फिर हम उस पर देखेंगे डायरेक्शन के हिसाब से कि उन दोनों का रिजल्टेंट इधर जा रहा है. तो अगर वो ऐड हो रहे हैं, इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन तो डायरेक्ट ऐड कर दो, इफ दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो, इफ दे आर इंक्लाइंड then F1 plus F2 F1 plus F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos थीटा वाला जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था. तो यहाँ पर इसका वैल्यू होगी F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos of थीटा. तो वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन हमारे पास क्या है. तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, कूलम्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सुपरपोजिशन के करने हैं, एंड देन सो एक इसमें हम कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड में लेंगे. तो दिस आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट यूनिट इज नाउ कंप्लीट. दिस चैप्टर इज Coulomb's law, and then you have to complete the notes starting from first you will define the charge, then second how to produce the charge, means method of charging इसमें आ जाएंगे. You have to write down, you have to explain all
top three methods of producing charge. Third one, properties of charge. And fourth one, Coulomb's law. And then Coulomb's law in vector form. And then characteristics of Coulomb's law, utility and drawbacks of Coulomb's law, these are the properties. And then superposition principle. Charge defined. Then how to produce? There were three methods: conduction, induction, and friction. Properties में quantization, conservation, and additive nature. And then like charges attract करते हैं, unlike attract करते हैं, like repel करते हैं, जिसपे सारा का सारा अगला प्रोसेस हमारा शुरू हुआ. Coulomb's law का सिंपल स्टेटमेंट है. Coulomb's law दो चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है, which is 1/4 pi epsilon naught. में कंफ्यूज नहीं होना है. epsilon naught एक वर्ड है जो परमिटिविटी को बताता है, और परमिटिविटी डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, इसलिए हमने वैक्यूम को epsilon naught से डिनोट किया है और मीडियम को epsilon से किया है. फोर्स का रेशियो अगर हम निकालेंगे वैक्यूम से मीडियम में, तो उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाएगा या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाएगा. वो अलग मीडियम के लिए अलग होगा. तो फोर्स वैक्यूम में मैक्सिमम होता है, किसी मीडियम में डालेंगे तो कम होता चला जाएगा. तो इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मीडियम इज सपोज्ड टू बी 1. मीडियम एंड एयर दोनों के लिए 1 होगा. देन Coulomb's लॉ का वेक्टर फॉर्म है. फोर्स एक दूसरे से लगेगा, उसमें उधर को ये भी इस पे लग रहा है, ये भी उस पे लग रहा है. अब दोनों में नेचर अपोजिट है. फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, बट एक इधर को लग रहा है, इधर को निकल रहा है. दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. वेक्टर फॉर्म में भी हम F12 निकालेंगे तो ट्रायंगल लॉ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट इज Coulomb's law in terms of position vector. तो पता ही चला जाएगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Coulomb's law. कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल है. Coulomb's law को बताता है फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट. Force obey inverse square law. Force is central force. Central force की force is always in between directing